એક ગામમાં મંદિર હતો ને, તો ટ્રસ્ટીઓને મંદિરનો જીર્ણોદ્ધાર કરવાની ઈચ્છા થઈ, કરાવવાની. એટલે કીધું કે આ પૈસા જોઈએ. તો બોલે કે આપણા ગામના જે શેઠ છે ને, બહુ દાન કાપે છે, એની પાસે જઈએ. એટલે ટ્રસ્ટીઓ ગયા શેઠ પાસે. શેઠજી, ભગવાન શિવજીનું મંદિર છે, જીર્ણોદ્ધાર કરવાનો છે, આપનું નામ સાંભળ્યું છે, તમે બહુ ઉદાર છો. અચ્છા, આવો ચા પાણી પીવું. મંદિરનો જીર્ણોદ્ધાર કરવામાં કેટલા રૂપિયાની જરૂરત છે? 1 લાખ રૂપિયા. 1 લાખ રૂપિયા. ઠીક. મુનિમજી, મુનિમને સાથ આવ્યો. કેમ? ચેકબુક લાવો. ટ્રસ્ટીઓ તો થઈ ગયો કે આવો દાતા આપણે જોયો નથી, પૂછ્યું નથી કે શું કરવાનું છે, ખાલી જીર્ણોદ્ધાર કીધું. ચેકબુક લાવો. ચેક આપ્યો. 1 લાખ રૂપિયા લખી આપો. ચેક આપી દીધો. ટ્રસ્ટીઓ સીધા બેંકમાં, કેશિયરની ત્યાં બેંકમાં ચેક મૂક્યો કે 1 લાખ બોલાય છે. ચેકના માપનું કરવું જોઈએ ને, પછી બહુ લાંબુ ન હોવું જોઈએ. હા, ટ્રસ્ટીગણ, હા, આમાં દાતાની સહી નથી, જેને ચેક લખ્યો છે એની સહી નથી. ઓ શેઠજી જલ્દી में भूल गए होंगे. તો બધા પાછા ગયા. શેઠજી તો બેઠા હતા. એને કીધું, શેઠજી આમાં તમે સહી કરવાનું ભૂલી ગયા કે હું નામ લખતો જ નથી, દાનમાં ક્યાંય મારું નામ હોતું જ નથી, હું બિલકુલ અનામી જ ગુપ્ત દાન જ કરું છું. હવે તારા ગુપ્ત દાનને હળગાવવું અમારે શું કરવું? क्या करना? तो मैं कह रहा हूं कि मैं बैठा था और स्वाभाविक सहज स्वभाव के कारण तो वकील साहब आए, तो मैं माला ऐसे करना, वकील ने देखा, आते ही जैसे आराम किया, बैठ के मुझे कहा, बापू मैं ऊपर आया तब आप माला नहीं फेर रहे, जैसे जैसे निकट आया ना आपने शुरू कर दी माला. ये एक ऐसी भजन है. अब तो और हमको देखकर अब मारो बचाव तो करवो જોઈએ. પછી મેં કીધું, સાહેબ બોર્ડર ઉપર આર્મી મેન હોય ને, એને જ્યારે હામાં દુશ્મન આવે ને ત્યારે રિવોલ્વર લઈ લેવી જોઈએ. બાકી તો બધી શાંતિ હોય ત્યારે કઈ નહીં. તમે આ પધાર્યા એટલે મારે આ શરૂ કરવું પડ્યું. એકલો બેઠો હોય તો મારે ભજન કરવાની જરૂર નહીં. આમ કરીને ગોટા વાળ્યા. तो श्रवण आसान है, यद्यपि मुश्किल है. श्रवणम कीर्तन, कीर्तन करना आसान है. स्मरण वो ठला जा करो. श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, कोईना चरण प्रक्षालन कर लेवा ए पण आसान है. श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम, वंदन करવું સહેલું છે. વંદનમ દાસ્યમ, અમે તો તમારા દાસ છીએ, દાસાનું દાસ છીએ એમ બોલી નાખવું એ પણ સહેલું છે. દાસ સખ્યમ, પણ कठिन में कठिन कोई भक्ति है भागवत की, आत्मनिवेदन. आत्मनिवेदन. तो राजाओं के सामने तुलसीदास जी ने कहा कि महाराज ऐसी स्थिति हो गई, अब क्या करें? ऐसा लिखा है, ऐसी बात है. गोस्वामी जी ने कहा कि एक काम करो, दुल्हा दुल्हन को श्रोता बनाओ. यद्यपि दोनों कन्या ही है बेटा, और मैं 9 दिन की राम कथा कहूं, फिर जो अस्तित्व निर्णय करे सो करे. और तुलसीदास जी ने वर्णा नाम अर्थ संगा नाम रसानां छंदसामपि मंगलानांच करतारव वंदे, आइए हनुमंत विराज्य कही. और रामायण नो 9 દિવસ એમણે પાઠ કર્યો. અને પછી એમ કહે છે કે પોતાના તુંબામાંથી જળ લઈને પેલી દ્રવિણ દેશની કન્યા જે હતી, જેને પુત્રના રૂપમાં જાહેર, એના ઉપર જળ છાંટ્યું. અને પછી કથા એવી છે કે પછી એ છોકરી છોકરામાં પરિવર્તિત થઈ. હું બહુ સ્વીકારું નહીં આ બધું,
આવું કંઈ આપણે બહુ માની નહીં ને. હા, આમ થોડીક તો છે, પણ એ ચમત્કાર જેવી ઘટના કે પછી પણ એનો અર્થ મેં હંમેશા કથામાં જ્યારે જ્યારે આ વાત કરી છે ત્યારે એમ જ કહ્યું કે તુલસીદાસજીની રામકથાએ પહેલો હારી ગયેલો કન્યામાંથી કુંવર બની ગયો એ મારે નથી કહેવું, મારે એ વાત તમારા ઉપર મૂકવી નથી, પણ રામચરિતમાનસની ચોપાઈમાં એ તાકાત છે કે એનામાં પૌરુષ જાગ્યું, એક ઉર્જા જાગી, એક જીવવાનો હોંસલો પેદા થયો કે અબ જીવી શકાય એમ છે, એવું થયું હશે એમ હું માનું. કેટલાય લોકો વર્ષોથી કથા સાંભળે છે, એના પણ પોતાના અનુભવ હોય કે આ કથા ન હોત તો આપણે હારી ગયા હોત, આપણે દુઃખી થઈ ગયા. આપણને જીવવા માટેનું ખૂબ મોટું બળ ભગવાનની કથા આપે છે. હું આને આ રીતે, બાકી કોઈ છોકરી છોકરો થઈ જાય ને એવું આપણે કઈ માની ન શકીએ, એ બધું પહેલી વાત. પણ એક પુરુષત્વ જાગે, એક ઉર્જા જાગે માણસમાં, એક કાયરતાને બદલે માણસ બેઠો થઈ જાય, એવું रामकथा करी सके. तो ये कथानो महिमा गान में ऐसे कई प्रसंग जोड़े गए हैं. तो ऐसी राम कथा आप जानते हैं आदि कवि वाल्मीकि है, जिसने पहला श्लोक जगत में को दिया आदि कवि के रूप में. लेकिन शिवजी ने रामचरितमानस की रचना अनादि कवि के रूप में की है और रामचरितमानस जगत के सामने रखा. तो ये रामचरितमानस की अतुलनीय महिमा है. कोई चमत्कारी बात जोड़े बिना ही आज कली प्रभाव में भी इतने लोग सुनते ही रहे. हम गाते ही रहे, न सुनने वालों के कान थके, न गाने वाले की जुबां थकी. ये उसके सत्य का प्रमाण है, ऐसा लगता है. तो बाप ऐसी राम कथा जो भगवान शिव जी ने रचना की और तुलसीदास जी ने इसका प्रकाशन अयोध्या में किया. संबत सोरग से धरी नवमी भो बार मधुमा अवधूरी तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना 1631 की संवत 1631 की साल रामनवमी का दिन, और तुलसीदास जी ने जो शिवजी ने रचना की थी अनादि कवि के रूप में, उसको अयोध्या में प्रकाशित किया. ये प्रकाशक बने, संपादक बने. तुलसी कहते कभी न हो नहीं चतुर, मैं कभी नहीं हूं, मैं शिव से जो विरासत मिली वो लोगों के सामने अयोध्या में आपके सामने रख रहा हूं. तो ऐसा रामचरितमानस वाल्मीकि जी कांड कहते हैं, बाल कांड, अयोध्या कांड. तुलसीदास जी ने कांड शब्द निकाल दिया. प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान, सोपान, एक 7 सोपान की सीढ़ी बनाई ऊर्ध्व जीवन जीने के लिए.
तो तुलसीदास जी जो कांड बोलने की आदत हो गई, इसलिए हम भी बोलते हैं प्रथम सोपान बाल कांड समाप्त, लेकिन मूलतः गोस्वामी जी सोपान लिखते हैं, एक निशय नहीं, उसके सोपान 7 सोपान। तो उसका जो ग्रंथ रूप है तुलसीदास जी का रचना का मानस, उसको 7 सोपान में उसको वो किया। प्रथम सोपान बालकांड, दूसरा सोपान अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदरकांड, छठा लंका, सातवां उत्तरकांड। 7 भाग में रामचरितमानस की ग्रंथ की एक व्यवस्था आप सब जानते हैं। इस 7 ग्रंथ सोपान लिख करके गोस्वामी जी प्रथम सोपान जब शुरू करते हैं तब मंगलाचरण में 7 मंत्र लिखते हैं। रामचरितमानस में आपको 7 का सांख्य बहुत मिलेगा। 7 की हमारी आध्यात्मिक दुनिया में 7 का अंक बहुत बड़ा महत्व का माना गया। कई बार निवेदन हुआ है, फिर दोहरा रहा हूं, ज्ञान की भूमिका 7 मानी गई। ये ज्ञानमयी ग्रंथ है, इसलिए 7 सोपान। हमारे यहां 7 आकाश और 7 पाताल, 7-7 का अंक है, 7-7। अभी हम चित्रकूट में बैठे थे तो मेरा मौन है इसलिए मैं लिख कर दिया था कि आकाश को और अवकाश को साहित्य जगत एक समझते हैं कि भिन्न समझते हैं। मेरा मार्गदर्शन करो। आकाश और अवकाश दो एक है कि भिन्न है? दो एक नहीं है। नभ सतकोटि अमित अवकाश। नभ मानी आकाश, करोड़ों हो माना, लेकिन अवकाश अमित असंख्य है, जिसकी कोई सीमा नहीं। और अंग्रेजी में तो उसके लिए 2 शब्द हमारे पास है ही। आकाश के लिए स्काई है और अवकाश के लिए स्पेस है, अमित। तुलसीदास जी का ये विज्ञान, नभ सतकोटि अमित अवकाश है। तो आध्यात्मिक जगत में आकाश की संख्या 7 बताई है, लेकिन अवकाश तो एक गैप जो है अनंत, जिसकी कोई संख्या नहीं। कागधाम मजादर के पद्मश्री दुलाभाई काग बापू, एक देहाती कवि ने पता है कि आकाश और अवकाश दोनों भिन्न हैं, जैसे गोस्वामी जी लिखते हैं। उसकी एक कविता में लिखा है, आकाश ना घड़नार ना घर ने घड़िया कोणे हसे। आकाश रूपी पदार्थ जेने बनायो એ કારીગરનું ઘર કેવડું હશે? આકાશના ઘડનારના ઘરને ઘડ્યા કોણે હશે? અને અવકાશની માતા તણા કોઠા કહો કેવડા હશે? જેने अवकाश को अपने गर्भ में रखा, उस माँ का गर्भ कितना महान होगा, कितना बड़ा होगा। नव सत कोटि अमित अवतार। तुलसीदास जी दोनों को भिन्न करते। साहित्य शायद दोनों को एक भी बता दे तो बता दे, लेकिन अध्यात्म दोनों को भिन्न मानते हैं। तो आकाश 7 है, भूर्व वह स्व करते 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 द्यो करते 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 ऊपर जाओ, 7 बताए। ऐसे 7 पाता। तो रामचरितमानस सप्त आकाश की ओर संकेत करते, इसलिए 7 सोपान, और उसकी गहराई पाताल से भी ज्यादा है। इतना गहन ग्रंथ है, इसलिए 7 सोपान, क्योंकि पाताल 7 है।
पूरा रामचरितमानस गेय है, गाने योग्य है, उसका गान होता है। और संगीत में संगीत के सुर 7 ही होते हैं। घना 8-9 करना कई बात जुदी एनो थाक लगे छोकरा, 8-9 सुर करना के एना पछी थाक लगे। 7 मारे में करे तो वांधो ना आवे, तो आपणे एन्जॉय करी। पण घना 8, 9, 10 જેટલા સુર ભેળવવા હોય એટલા ભેળે અને પછી મુક્ત થઈ જાય, 2 સુર થઈ જાય, મુક્ત થઈ જાય તો થાય। બાકી સરસ હતું। કેવું છે ટીનો તો કેટલો ખુશ થઈ ગયો, એટલો રાજી થયો કાલે, બહુ આનંદ કર્યો, બહુ કેટલા હોશથી ઉત્સાહથી ગાયું, બહુ આનંદ આવ્યો। सारू गाय तो आपने गमे यार, सारू तबलू मेळवे तो आपने गमे, सारू બધું અનુકૂળ હોય તો કાલે બહુ આનંદ કર્યો અમે, આખો થાક ઉતરી ગયો, ખબર નહીં। संगीत के सुर 7 है। राम कथा संगीतमय है, सूरमय है, इसलिए 7। ज्ञान की भूमिका 7 की बहुत संख्या हमें उपलब्ध होती है। सप्तद्वीप है हमारे शास्त्रों में, सप्तद्वीप, 7 द्वीप है। अपने नडियाद वाले दादा बोले, संस्कृत का जो विद्यालय अब तो नहीं रहे, दादा नाम भूल गया मैं, डाया दादा शास्त्री, उसने तो एक छोटी सी पुस्तिका कि एक वस्तु कितनी महत्व की, तो एक ये 2 कितनी, तो 2 का सांख्य कही, 2 ये 2 3, पूरा एक बहुत अच्छा अभ्यास करने योग्य सांख्य बताया। तो मानस के 7 सोपान है। यद्यपि लवकुश कांड क्षेपक करके डाल दिया गया, लेकिन 8 सोपान नहीं है, 7 ही सोपान, लवकुश कथा नहीं है। तो मुझे तो ऐसा भी बताया गुरु मुख से कि बाप 7 इसीलिए है क्योंकि दशा अवतार में राम का अवतार 7वां अवतार है। 24 अवतार में राम की जो गिनती आई, लेकिन दशा अवतार में राम अवतार 7वां अवतार माना गया। कृष्ण 8वां अवतार, भगवान बुद्ध 9वां अवतार, और कल की अवतार की प्रतीक्षा लोग करते हैं कि कल की अवतार होगा, ऐसा ग्रंथों में संकेत मिलता है। तो राम का अवतार 7वां है, इसीलिए 7 सोपान लिखे। कोई भी कारण हो सकते हैं, सब अपनी अपनी बुद्धि से ऐसा भाष्य बताते हैं। तो रामचरितमानस के प्रथम सोपान में 7 मंत्र लिखे हैं। मानो 7 सोपान का प्रतिनिधित्व एक एक मंत्र के थ्रू हो रहा है। संस्कृत में है, आप जानते हैं। यद्यपि गोस्वामी जी का पूरा ग्रंथ प्राकृत में है, भाषा है, लेकिन देववाणी में उसने हर एक ग्रंथ सोपान के आरंभ में संस्कृत में मंत्र लिखे। तो 7 मंत्र, इनमें से 1-2 मंत्र का हम आश्रय कर ले। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास याभ्यां विना न
पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वर वन्दे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणम् यमाश्रितो वक्रो चंद्र सर्वज्ञते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणम् वन्दे विशुद्ध वीर्यानमो कवीश्वरः कवीश्वरः उद्भव स्थिति संहारकारिणी क्लेश सर्वश्रेयस्करिणी सीता नतोऽहं राम पहले मंत्र में, मंगलाचरण के पहले मंत्र में मुझे मंगलाचरण शब्द ही बहुत अच्छा लगता है। पहले मंगल उच्चारण नहीं, पहले मंगल आचरण। पहले मंगल आचरण करो फिर उच्चारण करो, ये एक क्रम बड़ा प्यारा लगता है। तो प्रथम मंत्र में वंदे वाणी विनायको, भगवती सरस्वती और गणेश जी की वंदना की। जो लोग गोस्वामी जी को बिना समझे नारी निंदक बताते हैं, आज भी कई लोग बोलते ही रहते हैं कि तुलसी नारी निंदक थे, उसको मानस के प्रथम मंगलाचरण के श्लोकों को ही उसने नहीं पढ़ा है। वरना वहां सबसे पहले नारी मातृ वंदना गोस्वामी जी ने की है। हमारी पूरी परंपरा में स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, पहले गणपति की ही हम प्रतिष्ठा करते हैं, लेकिन गोस्वामी जी ने गणपति को दूसरे स्थान पर रखते पहले भगवती सरस्वती की वंदना की। ये नारी सम्मान है, मातृ वंदना है। और पूरे मंगलाचरण के मंत्रों में भवानी शंकरो वंदे, शंकर पार्वती का नहीं, पहले पार्वती की वंदना की। सीताराम गुणग्राम, पहले सीता जी की वंदना की। विनम्रता से मैं कई प्रमाण आपके सामने पेश कर सकता हूं कि तुलसी ने कभी नारी निंदा की ही नहीं। देश काल और पात्रता के अनुसार कुछ बातें कही गई, उसको इस रूप में लेनी। प्रारंभ ही मातृ वंदना से। किसी ने गोस्वामी जी को पूछा कि आपने परंपरा तोड़ी, गणेश की वंदना पहले करनी चाहिए। बोले विनय पत्रिका में मैंने कर ली गणेश की वंदना पहले। गाइए गणपति जगवंदन, वहां मैंने गणपति की स्थापना कर दी। लेकिन मानस क्रांतिकारी शास्त्र है, मर्यादा तोड़ी नहीं। कई मर्यादा जो देश काल और पात्रता के समय अनुकूल नहीं है, उसको ओवरटेक किया है तुलसीदास जी ने। इसीलिए क्रांति है ये।
तो पहले मातृ वंदना की, वंदे वाणी विना। गोस्वामी जी के सामने बात आई कि आपने क्रम तोड़ा, और ये सब काशी में हुआ, तो स्वाभाविक उसका पंडितों ने वो किया कि महाराज आप परंपरा तोड़ रहे। तो कहा कि मुझे तो गणपति की ही वंदना करनी है, लेकिन मेरे पास वाणी हो तो वंदना करूं ना, इसलिए वाणी वंदन करूं। वाणी ना हो तो मैं कैसे वंदन करूं? वंदे वाणी विना। वर्णमानी अक्षर, साहित्यिक दृष्टि से देखो ग्रंथ में आरंभ, वर्णमानी अक्षर, ये वर्णमाला हम कहते हैं, क ख ग घ आदि आदि। वर्ण, વર્ણનો સંગ ભેગો થાય, અક્ષરો ભેગા થાય તો શબ્દ બને, શબ્દો ભેગા થાય તો પદ બને, કવિતા બને, पद बने, कविता था, काव्य बने। गोस्वामी जी कहते हैं ये जो साहित्यिक परंपरा है, छंद बने, छंदबद्ध आगे चले कामकाज। लेकिन तुलसी कहते हैं ये सब व्यायाम, ये सब एक्सरसाइज मंगलानांच करता, जगत के कल्याण के लिए होनी चाहिए, वरना केवल शब्द में ही हम। एक वस्तु याद रखो मेरे भाई बहन, शब्द ब्रह्म है, यस, लेकिन अशब्द पर ब्रह्म है। तुम बोलना बंद कर दो तब पर ब्रह्म में रम्माण होते हैं। शब्द ब्रह्म है, आई एग्री, लेकिन अशब्द मौन ये पर ब्रह्म का प्रतीक है। मौन की बड़ी महिमा है। मैंने गत कथा में कहा भी कि मौन व्रत नहीं है, मौन विभूति है। मौनम चैवास्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञान बतामहम। कृष्ण अपनी विभूति कहते हैं, मौन मेरी विभूति। केवल व्रत नहीं है, मौन विभूति है, उसको विभूति का दर्जा दिया। ज्ञानियों में ज्ञान मैं हूं, और गुह्य से गुप्त गुप्त अभिप्राय में मौन मैं हूं, ऐसा चैवास्मि मैं हूं, ऐसा कहा, मेरी विभूति है। तो शब्द ब्रह्म है, यस, और ब्रह्म की फिर शब्द हो एना पछी तमे अर्थ करो ने, शब्द ब्रह्म नी बधी माया से अर्थ हो। मैं ये अर्थ करूं, तुम ये अर्थ करो, दूसरा ये सब माया का विस्तार है। इसलिए अशब्द ये पर ब्रह्म है, मौन ये पर ब्रह्म। मंगलानांच करतारो वंदे वाणी वीणा। तो पहले देवी सरस्वती की वंदना, क्योंकि हमारी औपनिषदी परंपरा मातृदेवो भव से शुरू होती है। पिता तो बाद में, पहले माता, माता की महिमा। एक भाई चूंटणी का अधिकारी होगा तो मतदार यादी विधि नोंध करवा माटे गया, एक भाई गया, तो एक भाई ने पूछू કે તમારા ભાઈના નામ આપો, તો કે છગન મગન નટુ ફટાફટ નામ આપો, તો કે માતા પિતાના નામ આપો, તો કે માતા પિતા નહોતા, પિતાની ખબર નહીં પિતા હતા કે નહીં નથી, એને જુદું જ કીધું। માતા પિતાનું તો કે માતા નહોતી પીતી, માં ન પીવે, માં હે, પણ પિતાનું કાંઈ નક્કી નહીં, પિતા હોય કે ન, એને આખું આનું જ લીધું। माता पिता नहोता, बोला कि माता पिता नाम लगा दो, माता पिता नहोता, पर पिता नु મને ખબર નથી, ક્યારેક ક્યારેક પિતા, ક્યારેક ક્યારેક નો પિતા, माता पिता। वंदे वाणी विना मातृदेवो भव, बाद में पितृदेवो भव, फिर आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। वंदे
वाणी विनय। इतना बड़ा प्रमाण है मातृ वंदना का रामचरितमानस का आरंभ। फिर भवानी शंकर वंदे, पहले पार्वती की वंदना की। कालिदास भी यही क्रम रखता है, पार्वती परमेश्वर वागर्था विव संपृक्तो कहकर जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर कह करके मातृ से शुरू करता है। कालिदासे અષાઢનું વર્ણન બહુ કર્યું। અષાઢનો પહેલો ભોળાભાઈ પટેલ તો એ દિવસે પાઠ કરતા, શાકુંતલનો પાઠ માનતા હતા, દીવો કરીને પાઠ કરતા શાકુંતલ। કોઈએ પૂછ્યું કે શ્રાવણનું કેમ કોઈએ વર્ણન કર્યું? શ્રાવણનું વર્ણન થાય એમ નથી, એટલે तुलसीदासजीએ પણ ન કર્યું। श्रावण श्रावण ये बोलने का महिमा नहीं है, मौन रखने का महिमा। श्रावण श्रावण है, सावन भादो मास। तुलसीदास जी भक्ति के दो ही महीने बताते, सावन और भादो। हमारे किलाधीश मैथिली शरण किलाधीश के जो उत्तराधिकारी तुलसी जयंती में तो श्रावण भादरवा नो अर्थ कर्यो छे साहेब कि दो ही भीने महीने, सावन और भादरवा। सावन भादो भादो, और उसने उसके शब्द में याद करो कितना सुंदर बोले थे। राजापुर में अद्भुत वक्तव्य दिया था सावन भादो मास पर। तो उसमें से मुझे विचार आया कि मैं सावन मानस सावन करूं। कि आपकी तो व्याख्या तो थी लेकिन अपने ढंग से, लेकिन तुम्हें बहु करियो से आ जांजी पर क्या थी बच्ची आई ते जांजीबार में जे थई होय बार बार नो थाय। जांजीबार में 12 शब्द आवे तो बार बार थई सके, वारंवार वो सब्जेक्ट हो सकता है। वंदे वाणी। तुलसीदास जी ने 3 ही शब्द सावन के लिए लिखा, 3 ही, 2 चौपाई में, 1 उसी में। क्यों? गोस्वामी जी को भी लगा कि श्रावण वर्णन नो विषय नहीं, खाली श्रवण नो विषय है। उसका कथन करना मुश्किल है। क्यों? श्रावण नो गजब महिमा। ऋतु में वर्षा ऋतु गजब है। वरसाद वाली ऋतु आपने गमे। नाना हता ने पलळता था ये गमतुं तुं ने आजे पण ए ज बधुं वर्षा ऋतु गमे ने। एमांय श्रावण महादेव नो आखो अपने दुर्गा ना नवरात्रि 9 दिवस, गणपति ना 15 दिवस आवशे हवे भादरवा में शुरू थशे। पण आखो महीनो कोईने नामे चढ़्यो होय तो मारा महादेव ने नामे चढ़्यो, आखो श्रावण। अने एक मान्यता एवी पण छे कि शंकर भगवाने जયારે ઝેર પીધું એ શ્રાવણમાં પીધું છે। દેવને દાનવ ભેગા મળીને સાગર મથવાને ધાર્યો। સમુદ્ર મંથન કરતા દેવાસુર લોકોએ અને વિષ હળાહળ નીકળ્યું ત્યારે विष्णु ने कहे के विष्णु कहे ये कार्य कठिन छे, हवे शंभुनु शरण स्वीकारो। कहते समुद्र मंथन हुआ के बाद सावन में मंथन आगे बढ़ा और विष निकला और सब देव महादेव के पास गए कि महादेव आपके सेवा, और महादेव ने विश्वान किया और